ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੋਖ ਚੰਦ ਢੀਂਗਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਢੀਂਗਰਾ, ਸਵਿਤਰੀ ਢੀਂਗਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਢੀਂਗਰਾ, ਮਮਤਾ ਢੀਂਗਰਾ, मनोहर लाल ढींगरा, कविता ढींगरा, कैलाश ठक्कर, जोगिंदरपाल ठक्कर, गौतम ढींगरा, संगीता ढींगरा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਜੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੋਖ ਚੰਦ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਲਾ ਰਾਮ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਠਾਕਰੀ ਦੇਵੀ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 15 ਫਰਵਰੀ 1934 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਭਾਰਤ ਆਣ ਵਸੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਨ 1962 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਵਿਜੇ ਢੀਂਗਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੋਖ ਚੰਦ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੋਖ ਚੰਦ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੋਖ ਚੰਦ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀਆਂ, ਪੜਪੋਤੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। कहते हैं कि जो जीव संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। कब जाए ये विधाता के हाथ में है, जाना सभी को। देवी देवता भी इस मानस चोले में संसार में आए, लेकिन उनको भी ये शरीर, ये संसार छोड़ना ही पड़ा। तो किसी ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
ना संत शरण में आया, ना भजन किया दो घड़ियाँ। ना संत शरण में आया, ना भजन किया दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, कौन छुड़ाएगा? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जो कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। जो कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाया है, चंद दिनों का डेरा अंत उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आगे लिखा है, सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तुम जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अंत में लिखा है, अब हंस शरण में निस दिन तो प्रीत लगा ले बंदे। अब हंस शरण में निस दिन तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के धंधे, पार हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ना संत शरण में आया, ना भजन किया दो घड़ियाँ। ना संत शरण में आया, ना भजन किया दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, कौन
साथ निभाएगा। तो प्रातः समय में उपस्थित मातृशक्ति बुजुर्गों भाइयों, जिस दिवंगित आत्मा के निमित्त श्री गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया है, उनकी आत्मिक शांति के लिए एकत्रित होकर उस दिवंगित आत्मा के निमित्त उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे परम पिता परमात्मा, जो दिवंगित आत्मा हमसे बिछड़ी है, हे प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान देना और इस परिवार को जो सदमा पहुंचाए उसको सहने की शक्ति प्रदान करना। श्री गरुड़ पुराण का पाठ क्यों रखा जाता है? कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जन्म से लेकर मरण पर्यंत कि अपने माता पिता के मरने उपरांत पुत्र को जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार करनी चाहिए जिससे माता पिता सदगति को प्राप्त हो। वैसे तो जो गरुड़ पुराण है वो 52 अध्यायों का है, लेकिन ये लोकाचारी के लिए 16 अध्यायों में निरूपण किया है। सर्वप्रथम कहते हैं कि अश्वमेध जब चला था उससे निर्मित होकर के सुख पूर्वक बैठे हुए भगवान विष्णु जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जीव इस संसार में जन्म लेकर के आता है, दुखों को भोग करके फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जीव इस संसार में आकर के मोक्ष की प्राप्ति करे? तो भगवान विष्णु जी कहने लगे, गरुड़ जी का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये परम गोपनीय विषय है, मैं इसका आधार वृतांत कहूंगा। तो सर्वप्रथम पहले अध्याय में जीव की उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है कि माता के गर्भ से जीव कैसे जन्म लेता है। माता और पिता के रज के द्वारा जीव माँ के गर्भ में आ जाता है। हर माँ एक अंग बनता है, तीसरे माह में लिंगो पुल्लिंग बन जाते हैं। साथ में माँ के पश्चात कहते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में हिलने जुलने की शक्ति प्रदान करता है। फिर 9 माह के पश्चात प्रसूति वायु उसको बाहर धकेलती है तो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के पश्चात बच्चा रोता क्यों है? बच्चा रोता क्यों है जन्म के समय? कहते हैं जब तक वो जीव मां के गर्भ में था उसकी जो बुद्धि थी वो परम पिता परमात्मा से जुड़ी हुई थी, उसको अपने 100 जन्मों की बातें याद थी। लेकिन कहते हैं कि जब प्रसूति वायु उसको बाहर धकेलती है तो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के पश्चात वैश्वी माया उस पर अपना पर्दा डाल देती है तो बच्चा सब कुछ भूल जाता है। भूलने के पश्चात बच्चा कान कान करके रोने लग जाता है। उसके पश्चात अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, पौगंड अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उस जीव को इस संसार में आकर के ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उसको सुख मिले और मरने के पश्चात उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। विस्तार पूर्वक इस शास्त्र में लिखा हुआ है। इसका सुनने का रखने का महत्व क्या है, इससे हमें ये मालूम होता है कि उस मृत प्राणी के निमित्त हमें क्या करना चाहिए जिससे वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करे। 7वें अध्याय में संस्कारों के बारे में लिखा हुआ है। 8वें अध्याय में
जब इन अवस्थाओं से लाभ करके कहते हैं कि जब वृद्ध अवस्था आ जाती है उस समय उस प्राणी को क्या करना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। मांस में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों की रोशनी मंद पड़ जाती है, चलने फिरने की शक्ति घट जाती है, आहार खाना जो है वो नहीं खा सकता, अगर खा लेता है तो पचता नहीं है। उस समय उस जीव को क्या करना चाहिए? अपनी आयु में जैसे जैसे जीव ने कर्म किए होते हैं अच्छे या बुरे कर्मों का उस समय कहते हैं कि मन से पश्चाताप करने लग जाए। इससे भी जो बुरे कर्म हुए हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ, कर्म पुराण में भी लिखा हुआ। फिर 9वें अध्याय में जब इस पंच भौतिक शरीर से आत्मा निकलती है, उस प्राणी को उनके परिवार वालों के उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। 10वें अध्याय में इस पंच भौतिक शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, निराधार निश्चेष्ट दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसके पश्चात पुत्र का क्या धर्म है? क्योंकि माता पिता पुत्र की कामना क्यों करते हैं? कि हमारी वृद्ध अवस्था में हमारी लाठी का सहारा बनेगा और मरणोपरांत को तर्पण करने वाला होगा, इसलिए माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। 11वें अध्याय में उस पार्थिव शरीर को नहला धुला करके शमशान भूमि तक ले जाया जाता है और उस प्राणी के निमित्त कहते हैं कि पिंड दिए जाते हैं। उन पिंडों का भाव क्या है? जब के आटे के पिंड बना करके वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा एक एक करके दिए जाते, इसका भाव क्या है? जैसे कहते हैं कि एक पत्थरकार पत्थर को रगड़ करके मूर्ति की शेप देता है, वो मूर्ति तब तक पूजने योग्य नहीं होती जब तक उस मूर्ति में वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा उस मूर्ति में प्राण नहीं डाले जाते, तब तक वो मूर्ति पूजने योग्य नहीं होती। इसी तरह जौ के आटे के पिंड बना करके वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उस मूर्ति और उस जौ में एक एक अंग बनता है, उनमें प्राण डाले जाते हैं, जिससे उसका शरीर जो है वो निर्मित हो जाता है। समय कम के अभाव से अंतिम जो घोष अध्याय है 16वां अध्याय, इसमें मोक्ष धर्म का वर्णन किया हुआ है। प्राणी को जो मोक्ष है वो किस प्रकार मिलता है। तो इस गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय में 2 शब्द दिए हैं। एक शब्द से जीव संसार से बन जाता है, दूसरे शब्द से जीव संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो 2 शब्द है कौन से? पहला शब्द है मम, भाव, फलां वस्तु मेरी है, ये मेरी धन दौलत है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी कोठी बंगला है। इस शब्द से जीव इस संसार से बन जाता है। दूसरा शब्द है नामम, मेरा कुछ नहीं है, जीव इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये बात समझने वाली है। मम और नामम, यही 2 पद मोक्ष और बंधन के लिए हैं। कर्म नहीं है जिससे बंधन ना हो, विद्या नहीं है जो मुक्ति को देने वाली हो, अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए तथा अन्य विद्या के शुद्धता दिखाने को है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है, तब तक तत्व की कथा कहा तो तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं, धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते और मरते रहते। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों में सब शास्त्रों का सार निकालकर तुमसे कह दिया है। फिर तुम क्या सुनना चाहते हो? सूर्य जी कहते हैं, राजन, गरुड़ जी मुखार भगवान के मुखार में से इस प्रकार के वचन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान
हे देव विषय प्रभु, आपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भवसागर से पार उतार दिया है। अब मैं संदेश से प्रताप हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। गहन दुख का विषय आज हम सभी भाई बहन इस पवित्र प्रांगण में एक दिवंगत आत्मा गोलोकवासी परम श्रद्धेय लाला अनोख चंद जी को श्रद्धांजलि देने के हेतु इस प्रार्थना सभा में, ज्ञान सभा में, शोक निवारण सभा में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहली बात, ये शोक सभा नहीं है। प्राय कोई संत है, महात्मा है, गुरु है, आचार्य है, पंडित है, विद्वान है, जो माइक उठाएगा वही ये कहेगा शोक सभा में बैठे भाई बहन। ये शोक सभा नहीं है, इसका नाम शोक निवारण सभा है। करीब करीब 11.5 लाख वर्ष से ये हमारे यहाँ चली। समय त्रेतायुग, भगवान श्री राम वनवास चले गए। उनके बन जाने के वियोग को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पुत्र वियोग में प्राणों का विसर्जन कर दिया। जिसे मैं और आप मौत के नाम से जानते हैं, ये हवा नहीं है, हमने इसको हवा बना रखा है। क्यों बना रखा, किसकी हमको जानकारी ही नहीं है। और जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं तो उससे डर भी लगता है। इसीलिए जो भी प्राणी इस दुनिया में आया है वो मरना नहीं चाहता। सब उपाय ना मरने के हम लोगों ने कर रखे हैं और मरने से हमको डर भी बड़ा लगता है। अब भी ऐसा लगता है लाला अनोख चंद जी चले गए, मैं और आप तो यहीं रहेंगे। हमारा तो परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। इस संसार का सबसे बड़ा विचित्र आश्चर्य है कि कंधे पर उठाकर लाला जी को पंच महाभूतों में अर्पण कर आए, जो कंधे पे उठा के लगे वो रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। महाराज दशरथ, जिसे मैं और आप मृत्यु के नाम से जानते हैं, ये अकारण नहीं आती। इसके 3 कारण हैं, स्थान, समय और कारण। टाइम, प्लेस एंड कॉज। जब तक इन तीनों का एकीकरण नहीं होगा, जीवात्मा कभी शरीरों के वस्त्र का त्याग नहीं करेगी। और जिस समय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों इनका एकीकरण हो गया, आज तक इस धरती पर कोई माई का लाल डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। कोई भाई बहन डॉक्टर हो तो क्षमा कर देना कि जो मौत स्पेशलिस्ट है, जिसे मौत का इलाज आता है। कोई एडवोकेट पैदा नहीं हुआ जो 5 मिनट की स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन लगा दे। और कोई जज दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मौत के खिलाफ 1 मिनट का स्टे ऑर्डर दे दे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कंजूसी नहीं भाई, लाला अनोख चंद सबको देख रहे, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। कहीं गए यहीं बैठे, मेरी कथा सुनने उन्हीं को सुना रहे। फिर बोलो जय श्री राम। मृत्यु के 3 कारण। राजा दशरथ के मृत्यु का कारण पुत्र वियोग बना और हमारे लाला जी लाला अनोख चंद जी की मृत्यु का कारण अस्वस्थता बनी। कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। अयोध्या पर दूसरा वज्राघात था। यथाविधि सभी कार्य स्थगित कर दिए गए और राजमहल में तो कोहराम मच गया और कोई विकल्प था नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ को सूचित किया गया। गुरु वशिष्ठ माता अवधूति के साथ पधारे। राजमहल में शोक निवारण कथाएं सुनाई, रानियों को ढंढस धैर्य बंधाया और 2 दूत अश्वारोहण करके, जिसे मैं और आज आप कश्मीर के नाम से जानते हैं, कालांतर में इसी का नाम कहकर प्रदेश था। जैसे 1966 से पहले हरियाणा नाम की कोई चीज नहीं थी, दिल्ली तक पंजाब था। 5456 वर्ष के पहले पंजाब नाम की भी कोई चीज नहीं थी, पांचाल देश था। इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहते थे। द्रौपदी आपके जलंधर की थी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अस्तु सभी कार्य स्थगित कर दिए गए। 2 दूत भेजे अश्वारोहण करके, 7 दिन आने जाने में लगे।
महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को 7 दिन सुरक्षित रखा गया। 7 दिन के बाद और दैवी कर्म हुआ। 13 दिन के पश्चात गुरु वशिष्ठ ने एक सभा आयोजित की और उसका नाम रखा शोक निवारण कथा, कि सभी प्रियजन और सभी प्रजाजन सुने। आज तक अयोध्या में शोक था, आज यहाँ सब भैया बिरादरी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, परिवार, मोहल्ला, पड़ोस समस्त सुने। आज इस शोक की निवृत्ति की जा रही है। पगड़ी के रूप में उनके पुत्र भरत को उनका उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा और कल से अयोध्या में सभी काम उसी प्रकार प्रारंभ हो जाएंगे जैसे महाराज दशरथ के सामने होते थे। लाला जी गोलोक चले गए। आज समस्त भैया बिरादरी, रिश्तेदार एकत्र होकर उनके मध्य में इस शोक की निवृत्ति की जा रही है। पगड़ी के रूप में उनके पुत्रों को उनका उत्तरदायित्व संभाल दिया जाएगा और कल से इस ढींगरा परिवार में सभी काम उसी प्रकार प्रारंभ हो जाएंगे जैसे लाला जी के सामने होते थे। नौकरी, व्यापार, बिजनेस, बहन बेटियों का मैके ससुराल में आना जाना। इसलिए इस सभा का नाम है शोक निवारण सभा। ये शोक सभा नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। विषय ज्ञान का है। पहले तो हमको ये पता लगना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे यहाँ आने का लक्ष्य क्या है। और मैं आपको निवेदन करता हूँ मेरे प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जीवन में जीव का जब तक लक्ष्य पवित्र नहीं होता उसके लक्षण कभी पवित्र नहीं होते, तो चाहे जितना प्रयत्नशील रहे। इसलिए जीवन में थोड़ा सा कभी हमें दुख का भान भी होता है क्योंकि हम लक्ष्यहीन हैं, लक्ष्य से भटक रहे हैं, एमलेस जीवन जी रहे हैं। 4 लक्ष्य हमारे यहाँ आने के हैं। सबसे पहला लक्ष्य भगवत नाम। जब कभी भी हमारे घर में, परिवार में इस प्रकार के गहन शोक और दुख का अंधकार आता है तो उसकी निवृत्ति के लिए एक दिन और समय निश्चित करते हैं ताकि हम भगवान का मंगल नाम लें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास दे के सदगति और मोक्ष देना, आवागमन से छुड़ा देना, और जो पीछे शोक संतप्त परिवार है उसको इस गहन वियोग को सहने की शक्ति देना। दूसरा उद्देश्य ज्ञान। सूर्य अस्त हो जाने के बाद प्राय अंधकार हो जाता है और जब अंधकार हो जाए तो घर में से अपने राहत की रखी कोई वस्तु लेनी पड़े तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यद्यपि घर भी अपना है, वस्तु भी हमारी है, रखी भी हमने है, फिर भी प्रकाश चाहिए। ऐसे ही परिवार में जब इस प्रकार के दुख और शोक का अंधकार आता है तो उसकी निवृत्ति के लिए हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसके लिए गरुड़ पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब अनान ग्रंथों के पाठ रखते हैं। संतों को, महात्माओं को, पंडितों को, गुरुओं को बुला के प्रवचन कराते हैं। तीसरा उद्देश्य, लाला जी नूर महल नगर में पंजाब में एक छोटे से मकान में रहकर गृह संचालन में संलग्न थे। मृत्यु देवी ने उस घर के दरवाजे को नॉक किया, उस हस्ती को ले गए। इसलिए हम भारी संख्या में बैठकर यहाँ मृत्यु से प्रार्थना करने आए हैं। यही मृत्यु देवी, एक हस्ती को तो आप इस ढींगरा परिवार से ले गई, क्योंकि आप तो इसका द्वार देख चुकी हो। इसलिए हम सभी भाई बहन प्रार्थना करते हैं कि जो बाकी बचा हुआ ढींगरा परिवार है उस पर कृपा बनाए रखा। चौथा उद्देश्य, जन्म से लेकर महासभा मंडप तक हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। अब तो दुर्भाग्य है, हिंदुओं को संस्कारों के नाम ही पता नहीं। मेरे पास भी समय नहीं, मैं भी 2 संस्कारों की चर्चा करूंगा। पहला और अंतिम। पहले संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। गर्भाधान संस्कार माता पिता के द्वारा किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार किया नहीं जाता।
ये पुत्र के द्वारा कराया जाता है। श्रीधर पंडित जी ने 16वें अध्याय में पुत्र की व्याख्या की होगी आपको गरुड़ पुराण में। पुण्य नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रा, जो पुण्य नाम के नरक से त्राण करता है, रक्षा करता है, उस बेटे का नाम पुत्र है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम संस्कार पुत्र के द्वारा कराया जाता है। इन 4 बातों पर थोड़ी बोलोगे। पहला लक्ष्य भगवत नाम। कोई भाई बहन ऐसा ना रहे जो भगवान का नाम ना ले। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप पुनरावृत्ति कीजिए। इसी में मेरी और आपके लाला जी को श्रद्धांजलि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवत्सल भगवान की। दूसरा उद्देश्य ज्ञान। सभी भाई बहनों से कवंत प्रार्थना करता हूँ, अपनी अपनी अंत्य चतुष्ट अंत्यकरण पर मन चित्त और बुद्धि को एकाग्र कर लो। विषय ज्ञान का है, नहीं तो सिर से उड़ जाएगी बात। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, हमारे यहाँ मौत नाम की कोई वस्तु नहीं है। मौत एक अवस्था है। लाला अनोखचंद जी ढींगरा कल हमारे बीच में थे, आज हैं, कल रहेंगे, इस वक्त यहीं बैठे। अंतर इतना सा है, कल वो हमारे बीच में शरीर से थे और अब हमारे बीच में वो तस्वीर से हैं। 92 वर्ष पहले 92 years ago उनका क्या आया, क्या 92 वर्ष रहा, क्या चला गया, ये हमने जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं। और इनकी बात तो छोड़िए, मेरे से भी ज्यादा आप बहुत परिचित हैं लाला जी से। इनके गुणों पर तो एक छोटी सी पुस्तक लिखी जा सकती है। इतने गुणज्ञ प्राणी, ऐसा परिवार जिससे प्राय मेरे विचार से 100 मील में कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं जो इस परिवार से परिचित नहीं हो। क्योंकि ज़्यादा मैं प्रशंसा नहीं करूँगा, क्योंकि प्रशंसा से पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पुण्य नष्ट होने से जीव का पतन हो जाता है। इसलिए हम पतन नहीं, हमको उत्थान करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। मौत नाम की कोई वस्तु नहीं हमारे यहाँ। मैं प्रमाण देता हूँ, जन्मे जग में जब बाल भये, तब एक सुधीरई भोजन की, तन में तरुणाई जबई प्रगटी, तब प्रीत बढ़ी तरुणी तन की। तन वृद्ध भयो धन की ममता, तुझे लोग कहें सन की, सुख मंजुल नाई मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। जितने भाई बहन बैठे हैं सब यू आर वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड पर्सन्स। आप सब भाई बहनों ने अपना बचपन देखा, यूज किया, भागे भागे स्कूल जाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, आप रस्सियां टपते थे, खाते पीते पढ़ते लिखते खेलते कूदते हम लोगों का बचपन बीत गया। आप में से कोई बड़ा भाई बहन ऐसा बैठा है जो मुझे हाथ खड़ा करके बता दे कि पंडित जी मुझे वो दिन याद है जिस दिन मेरा बचपन बीता, मुझे जवानी आई। उस दिन सोमवार था कि मंगलवार था कि बुधवार था? बोलो ना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है आप में से किसी को दिन याद? महीना तो होगा और समय का अभाव है, ज़्यादा समय मैं नहीं बताऊंगा आपको तो उस साल भी याद नहीं। प्यारी बहनों, आपको आपका बचपन कुछ कहकर गया था। भाइयों, आपको तो जवानी पूछ के आई होगी कि मैं आ जाऊं। आपको बचपन जाने का दुख हुआ, आपको जवान होने की कोई प्रसन्नता हुई?
अरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, आपका बचपन भी कुछ कहीं चला गया, जवानी बिन बुलाए आपको आ गई। बचपन जाने का कोई दुख नहीं हुआ, जवान होने की कोई प्रसन्नता नहीं हुई। 84 लाख योनियां परमात्मा ने रची, 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनको बुद्धि मिली। बुद्धि केवल मनुष्य को दी। आपने कभी ये विचार किया चलो बचपन चला तो गया पर कितने गया? आप सब लोग अपने घरों से चल के आए हो भूतनाथ मंदिर में, तो घर कह के आए हो लाला जी की श्रद्धांजलि सभा में जा रहे हैं। आप वॉकिंग डिस्टेंस चल के आए हो, घर कह कर आए हो, और आपको ये नहीं पता आपका बचपन कहाँ चला गया। आप सब में मेरे विचार से तो अधिकांश व्यापारी लोग बैठे हो, व्यापार घाटे का कर सकते हो? बोलो ना, नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ ये सेकेंडरी स्टेटस है व्यापार को। आप लोग और मेरे समेत हम जिंदगी घाटे की जी रहे हैं। हमारा 1/3 भाग जिंदगी का बचपन चला गया और हमको ये भी नहीं पता वो कहाँ गया। आप शाम को हिसाब लगाते हो, 1100 रुपये का फर्क रहेगा। एक दिन कैलकुलेटर और कंप्यूटर शुरू हो गई, यार 1100 रुपये कितने गए, 1100 कितने गए, 4 आउट प्रिंट निकालिए। घर वाली ने फोन किया, लाला जी घर नहीं आ रहे हो, खाना ठंडा हो रहा है। बोले आएंगे, कहीं घर आने कहिए थे 1100 रुपये का फर्क नहीं मिल रहा है, फर्क मिला के आएंगे। लड़का आया, डैडी घर नहीं गए, बोले 1100 रुपये का फर्क नहीं मिला। लड़के ने आउट प्रिंट उठाया, देखा चारों, बोले इनको की वे बता, कहता 4 कड़ छठे ऐसी, बोले चारों में 1100 रुपये की एंट्री नहीं है। बोलो क्योंकि वो दिल्ली वाले पढ़ने भी आए थे, उनको 1100 रुपये बच्चा फेंकना था, वो तो एंट्री है ही नहीं। एंट्री की 1100 रुपये का फर्क मिल गया। आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए, 1100 रुपये कितने गए? वही यू आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल सेटल्ड सिस्टर एंड ब्रदर्स, आई वांट टू आस्क यू, आपने कभी जिंदगी की 2 मिनट खोई है कि मेरा 1/3 भाग बचपन जिंदगी का कितने चला गया है? कोई आप पे से कितने घाटे की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इतनी बड़ी संख्या भगवान के नाम में कंजूसी। जय श्री राम। भगवान का नाम तो जोर से बोलो। और एक बात और बता दूं आपको, नाम जप के बिना आपका प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम के बिना आपका पुण्य नहीं बढ़ सकता, पुण्य के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और परमात्मा के बिना सदगति नहीं मिल सकती। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए उठते बैठते जागते सोते भगवान का नाम लेते जाओ। किसी भगवान का ले लो। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेवाय नमस्कारम केशवम प्रिय गच्छति। जैसे बारिश में पानी कहीं से बरस जाए, बह के चलता है नाली में, नाली से नाले में, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में चला जाता है। भगवान नंदनंदन मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर बच्चा माता पिता को भी मत्था टेकता तो मुझे प्राप्त होता, वो मुझे मिलता। तो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेश्वर जी तिष्ठति। हमको तो यही नहीं पता है। भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, भूत भवन पति पवन, चंद्रशेखर महाकाल कालेश्वर, चंद्रमौली भगवान शंकर ध्यानस्थ थे। माँ पार्वती ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी गई, शंभु पई मात भगवान ने प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले कैसे आना हुआ? बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आता, ये पंडित लोग और संत लोग रोज गाते गाते हैं आपकी। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता, जग हरता, जग पालन करता। आप सृष्टि को पालन भी करते हो, पैदा भी करते हो, श्रृंगार भी कर देते हो। ये तो मनुष्य भी करते, बच्चे पैदा भी करते, उन्हें पालते भी हैं। कोई बुजुर्ग चला भी जाए तो सब उसका
संस्कार भी करते हैं। बोले पार्वती मेरे और मनुष्यों के कर्म में अंतर है। मनुष्य जिसे जन्म देता है उससे उसे मोह हो जाता है, और मोह ही सारी दुनिया में जीवन में दुखों की जड़ है। और जितने हम भाई बहन बैठे हैं मेरे समेत, मोह हमको केवल दो चीज से है, एक संपत्ति से है, एक संबंधी से है। तीसरी चीज से मोह कभी ना आज तक किसी को हुआ है, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा। बूटा हम लगाते हैं, पानी जड़ में देते हैं, पत्तों को डाली को देने की जरूरत नहीं, वहीं से पहुंच जाता है। ऐसे ही मोह को अगर आप संपत्ति के जल से सींचोगे, पानी से, जल से वृक्ष को सींचोगे तो वृक्ष बढ़ता चला जाएगा। और आप संपत्ति और संबंधी के जल से जितना मोह को सींचोगे उतना दुख रूपी वृक्ष जीवन में बढ़ता चला जाएगा। परमात्मा भी आपको दुखी होने से नहीं बचा पाएगा। तो मौत के विषय में बात कर रहा था कि मौत की हमको जानकारी है। जन्मे जग में जब बाल भये तब एक सुधी रही भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगति तब प्रीत बढ़ी तरुणी तन की, तन वृद्ध भयो धन की ममता तुझे लोग कहें सन की सन की, सुख मंजुल नाही मिलो कबहू रही अंत समय मन में मन की। हनुमान चालीसा से लेकर वेद तक इंडियन माइथोलॉजी का कोई ग्रंथ मैंने नहीं छोड़ा जिस पर मैंने थीसिस नहीं लिखी और इसकी तह तक पहुंचा। निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत शिरोमणि कबीर से पूछा जीवन मृत्यु का मूल्यांकन क्या है। कबीर जी ने लेखनी उठाई, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात देखते ही छुप जाएगा, जू तारा प्रभात। इंग्लिश राइटर मिस्टर दत्त लिखते हैं लाइफ इज लाइक ए बबल ऑफ वाटर। उर्दू के विद्वान से पूछा, उसने भी लेखनी उठा कर लिख दिया, 4 दिन की जिंदगी जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा इसमें, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आशना। जितने भाई बहन हम बैठे मंच वाले भी सुनो, 78 करोड़ 84 लाख सांस की चाबी भरी है हमारे अंदर। एक फालतू आने वाला नहीं है किसी को भी। कम कितने करते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ऋग्वेद का सूत्र है। कितने सांस है हमारे अंदर? 78 करोड़ 84 लाख। प्रमाण दे देता हूँ। कभी आपके पास समय हो, घड़ी को देखना, सेकंड की सुई पे ध्यान रखना, नॉर्मल सांस लेना। स्वस्थ आदमी को 1 मिनट में 15 सांस आते हैं। 1 घंटे में 15 छिके 90 900, 24 घंटे में 21,600, 365 से गुणा कर लेना, 1 साल में 78 लाख 84,000, और 100 से गुणा कर लेना, 100 वर्ष में 78 करोड़ 84 लाख। हमको तो कोई प्रणाम करता है तो उनसे आशीर्वाद देते हैं, जीवे सदा शतम, आप 100 वर्ष जियो, सुखी जियो, स्वस्थ जियो। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आशमा, काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खुद ब खुद गिर जाएगी। आप सभी भाई बहन पढ़े लिखे बैठे हो। वर्ल्ड राइटर शेक्सपियर से पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। शेक्सपियर ने भी लेखनी उठा कर लिखा है, ओ संसार के प्राणियों, he has conquered himself and in first instance he conquered the world. But now your life is like a line of pencil which can be rubbed at any time. पंजाबी के विद्वान से पूछा जीवन मृत्यु का क्या मूल्यांकन है। उसने भी लेखनी उठा कर लिख दिया, जिंदगी का की भरोसा है के मेले रुक गया। ये कीर्तन चल रहा है, इसे क्यों जलाते हैं आप लोग? कब तक जलता रहेगा ये हमारे जीवन को अस्तित्व को बता रहा है। स्वयं अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। देवे दिलो वांगो इस जिंदड़ी दा खेलवे,
बुझ जाना दीवा जदों तेरा मुख जाना तेल वे दिवे दी लो वांगू इस जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों तेरा मुख जाना तेल वे दिवे दी लो वांगू मारिया उडारिया ते उड़िया भी नहीं हो जाना मुंह दे भार डिगा उठिया भी नहीं हो जाना काल शिकारी जदों मारनी गुलेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुख जाना तेल वे दिवे दिलो वांगू। जो लाला अनोख उड़ते फिरते थे, अपने तो सभी सवार थे, लोगों के कार्य सवार थे। 3 प्रकार के कार्य समाज में होते हैं, राजनीतिक, एक सामाजिक और एक धार्मिक। 9 में क्षेत्र में तीनों में से कोई काम अगर इस परिवार को बता दिया गया तो जब तक इस परिवार की आहुति नहीं पड़ी वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਨੋਖ ਚੰਦ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਰਾਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਆ ਗਏ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਚੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੈਸਾ, ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜੈਸਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ तो भक्त जैसा, प्रभु राम जैसा। इसी तरह ही उन्होंने जिहड़े संस्कार उन्होंने एक वधिया पिता का रोल अदा किया, उस दे नाल नाल उन्होंने अपने बच्चों को इहो जिहे संस्कार दिते कि विजय ढींगरा जी, मनोहर ढींगरा जी ते अशोक ढींगरा जी, इत्थों तक कि इन्हां दा पोतरा गौतम ढींगरा, ये भी समर्पित भाव के नाल साडे शहर दीयां धार्मिक ते समाजिक संस्थावां दीयां सेवावां दे विच पूरे का पूरा परिवार लगा है। छोटे छोटे सी मैं फिर रिपीट कराँगा, विजय ढींगरा जी ने जो हॉलैंड तो आना, फिर संत कन्हैया गिरी जी होंगे सी, उन्हें कहना अरे अशोक अगर जहाँ विजय कहाँ ये हो जाए, हमें ये एक रूम चाहिए पीछे, हमने पीछे लेकर जाना है अपना आसन, ये मंदिर में पानी गिरता है जब बरसात होती है, इसके सामने लेंटर पड़ जाए तो ये भवन अच्छा बन जाएगा। तो विजय जी ने कहना बहुत वधिया गल है जी, महाराज जी तुसीं शुरू करवाओ। इसी तरह ये कहते जो मैं छोटा जहा सी, असीं तलाब च नहाण आंदे सी तो मेरे मन च एक भावना होंदी सी कि भोलेनाथ जी कृपा करो, मैं तुहाडी इत्थे मूर्ति स्थापित करवानी चाहना तलाब दे विच। इन्हां दी भावना है हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति इस मंदिर दे विच स्थापित करवाई। इसी तरह ही जेकर असीं गौशाला की गल करिए तो कृष्ण जी की मूर्ति जो असीं गौशाला की स्थापना की तो विजय ढींगरा जी कहन लगे कि जेकर इत्थे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति नहीं है, जो उन्होंने पूजा नहीं होंगी तो गौ पूजा भी तां ही संपन्न है। जो कृष्ण जी की पूजा होंगी है, जो गौ की पूजा होंगी है तो समझ लो कृष्ण जी, दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी सेवा गौ सेवा समान है। सो फिर इन्होंने कहा कि गणेश जी की मूर्ति के नाल असी जिहड़ा साडी एंट्री आ होनी चाहिए है वो भी रखवाई गई। मेन गेट के नाल एक विशाल मूर्ति तुसीं देख के आए हो, अंदर एंट्री करने लगे, वो भी ढींगरा परिवार। ये सिर्फ विजय अशोक या मनोहर ढींगरा जी की गल नहीं है, इन्हां बच्चों की गल नहीं है, मार्गदर्शन साडे माता पिता का है, अंकल जी का है, अनोख चंद ढींगरा जी का है, साडे माता जी लाल देवी जी का है, क्योंकि माता पिता की आग्ञा उन्होंने दिते हुए संस्कारों तो बिना ये संभव नहीं है। गल इत्थे खत्म नहीं हो जाती।
विजय चोपड़ा जी आने वाले ने हिंद समाचार ग्रुप के जोड़े मुख संपादक ने ओनर ने इन्होंने अनेकों बार जम्मू कश्मीर के जोड़े प्रभावित लोग आ उन्होंने वास्ते ट्रकों के ट्रक राशन भेजे। जेकर असीं गल करिए ढींगड़ा परिवार वालों हर साल अमरनाथ यात्रा लिए 2-2 बसां दित्तियां जांदियां, उन्हां दे खाण पीण की व्यवस्था, उत्थे जाण की व्यवस्था, ये भोलेनाथ की कृपा तो बिना ये संभव ही नहीं है। जिस परिवार से प्रभु की कृपा होंदी है उन्होंने उस परिवार को उस ही रूहां उन्होंने लोगों को भी यहो जिहियां जिहड़ियां सेवावां प्राप्त होंदियां ने। मैं समय समय पर तारीफ करवावांगा। सब तो पहले मैं डॉक्टर शक्ति महिंद्रू डिस्ट्रिक्ट मैडिकल ऑफिसर रिटायर ने, मैं उन्होंने बेनती करता डॉक्टर शक्ति महिंद्रू जी दाई सेवा 2 मिनट लिए, क्योंकि चोपड़ा जी ने आना, वड़ाला साहब का भी मैसेज आ गया, वो भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर शक्ति महिंद्रू जी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जलंधर। उन्होंने पूरा जीवन हमारे बाजार नया बाजार में कपड़े का व्यापार किया। हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। इतने ईमानदार, इतने प्रेम करने वाले ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। उनकी नेचर लाजवाब, इतने कूल, काम, पॉजिटिव, रिलैक्स पर्सन मैंने आज तक नहीं देखे। उनकी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदना, पुष्पांजलि, बहुत श्रद्धांजलि। जय श्री। मेरे को कोई शोक संदेश आए ने मदर श्री बाबा भूतनाथ एवं गौशाला कमेटी जिसकी मैं गल कर रहा सी, बहुत बड़ा योगदान है गौशाला वास्ते। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तो शोक संदेश आया। संत लोग साडे दरम्यान इत्थे बैठे ने। सनराइज पब्लिक स्कूल नूर महल उन्होंने वालों भी शोक संदेश आया। श्री जंग बहादुर कोहली जी प्रधान रामलीला कमेटी के समस्त रामलीला कमेटी के मैंबरान, श्री भूषण लाल शर्मा जी प्रधान रामा ड्रामाटिक क्लब नूर महल, क्योंकि बाबू जी उन्होंने भी संस्था के सरप्रस्त काफ़ी लंबा समा रहे हैं। श्री अनिल कुमार जी महन कौंसलर उन्होंने वालों शोक संदेश है। डॉक्टर नवजोत दहिया जी हल्का इंचार्ज कांग्रेस नकोदर, प्रधान के समूह कौंसलर साहबान ते कर्मचारी साहबान नगर कौंसल नूर महल, राजीव मिश्रा जी प्रधान ब्राह्मण सभा नूर महल, मंदिर श्री हर हर प्रबंधक कमेटी नूर महल मानयोग श्री रामपाल शर्मा जी बैठे ने। मैनू पता कि नोकचंद ढींगरा जी ने इन्हों के नाल बड़ा लंबा समा उस मंदिर की प्रबंधक कमेटी के मैंबरान होंदे उसका रख रखाव जोड़ा करने के इन्हों का भी बड़ा सहयोग रहा। साडे दरम्यान श्री गोपाल शर्मा जी जोड़े रिप्रजेंट करते हैं बतौर पत्रकार हिंद समाचार ग्रुप जलंधर, वो भी इत्थे पहुंचे ने, उन्होंने वालों शोक संदेश आया। बलवीर सोंदी जी बाबा आलम शाह दरबार प्रबंधक कमेटी वो भी इत्थे आए हैं, उन्होंने वालों शोक संदेश है। तो साडे बहुत ही मानयोग रिटायर्ड ACP लुधियाना श्री सतीश मल्होत्रा जी वो भी इत्थे पहुंचे ने, मैं उन्होंने वालों भी शोक संदेश भेंट करदा। तो हुण 2 मिनट तक बाबू जी आते हैं। मैं श्री जगत मोहन शर्मा जी साबका वाइस प्रधान नगर कौंसल नूर महल उन्होंने बेनती करता, क्योंकि बतौर मदर श्री बाबा भूतनाथ कमेटी मैंबर ते साबका प्रधान नगर कौंसल नूर महल इन्हों का भी ढींगरा परिवार के नाल बहुत नेड़ता है। जगत मोहन शर्मा सारे लाला लोकचंद ढींगरा जी ने श्रद्धा के फल भेंट करने करता हूँ। मैं अपने बचपन से देखता आ रहा कि लाला जी इतने धार्मिक स्वभाव के बहुत ही बड़े चाहवान सी। हर धार्मिक प्रोग्राम शहर के विच होना उत्थे उन्होंने जरूर जाना, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे दशहरा, रामलीला के नाटक हो, जन्माष्टमी हो, समाज के होर, चाहे वाल्मीकि भगवान जी का जन्मदिन, चाहे रविदास महाराज जी का जन्मदिन। मैं समझदा हर भाईचारे को उन्होंने उत्थे जाके अगवाई की। उन्होंने जान का समा वैसे तो वो बड़ी लंबी आयु बतीत करके गए आ। अज के इस दुर्लभ समय के कोई दुर्लभ ही प्राणी इन्नी लंबी आयु बतीत करता। इतों पता लगता है कि लाला जी ने अपने जीवन कितनी मेहनत कीतियां, कितने अच्छे विचार से। मैं देखा बड़े ही सूझवान, बहुत ही परमात्मा पर भरोसा रखने वाले। उन्होंने अपने परिवार की भी परवरिश बहुत अच्छे ढंग की, बड़े अच्छे संस्कार दिते, पर परिवार ने भी उन्होंने नाम रोशन करने कोई कसर नहीं छड्डी। चाहे विजय जी हो, चाहे अशोक
ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਲਾ ਲੋਕਚੰਦ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੋਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ, ਪਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਢੀਂਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਖਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਊ ਜੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਓਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੋਖ ਚੰਦ ਜੀ ਢੀਂਗਰਾ, ਵਿਜੇ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ, ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ। प्यारे विजय ढींगरा जी, उन्होंने फैमिली, उन्होंने दोस्त, इस सारे शहर के परवान के रिश्तेदार, एक अफसोस की गल है कि वो सानू छड़ के चले गए। मेरी विजय ढींगरा जी के नाल बहुत पुराने संबंध हैं और मैं इस जगह पे कई दफ़ा आया। इस जगह की शक्ल सुधारने वाला ढींगरा फैमिली है, जिहदे अनोख चंद जी का आशीर्वाद प्राप्त सी। मैनूं याद है कि कोई ना कोई चीज़ चलती रही सी। मैं जो पहली दफ़ा आया तो डेथ सी, तो मैं क्या थोड़ी ठीक नहीं है, सुनसान हो गई, उन्होंने ठीक किया। नाल गौशाला सी, उस तो बाद एक मूर्ति, छोटी मूर्ति का हाल, पर उन लोगों ने आके उन्होंने भोजन कराना, उनको दक्षिणा देनी, तो एक कोई काम नहीं जरा जाना उत्थे अमरनाथ यात्रा उत्थे लेके आना, साढ़े रामनवमी जाना उत्थे भी मना करते करते भी दे जाना, दान की प्रवृत्ति सारे ने जाना, इन्होंने भी जाना और आप पीछे हो जाना, कोई फोटो का शौक नहीं। विजय होना पिता जी भी नाल जाते थे। एक तकलीफ सी, दवाई नहीं सी खाते, बड़ी मुश्किल सी उन्होंने दवाई खवानी। जो पूछना की हाल है, कभी दवाई नहीं खाते। तो अगर थोड़ा जहा अगर सहयोग मिलता तो आज शायद असी उन्होंने अपने श्रद्धा के तौर पर करने की लोड़ नहीं सी। तो मैं वो आत्मा जितने भी है बच्चों के आशीर्वाद रखे, थोड़े सारे शुभकामनाएं दे और परमात्मा को अपने अपने जगह पे धन्यवाद। जय परिवार वालों दक्षिणा या सहायता कटी गई है तो हो लिया जाए। डेरा संत साहू राम जी नूर महल, पीली मिट्टी शमशान घाट नूर महल, परशुराम मंदिर नूर महल, बाबा बालकनाथ मंदिर महला पुरियाँ, बाबा शाहफती अली जी नूर महल, मंदिर हरिहर नूर महल, सीताराम मंदिर नूर महल,
वाल्मीकि मंदिर महला फलाई वाला नूर महल, रघुनाथ मंदिर नूर महल, मंदिर श्री देवी स्थान जी नूर महल। इस तो अलावा मंदिर श्री बाबा भूतनाथ भी गौशाला सहयोग आया। इन्होंने संस्थावां नाल संबंधित जोड़े भी मैंबर ने वो मेरे को आके अपना जोड़ा सहायता राशि आ वो लै सकते हैं। श्रीमती सुनीता जस्सर जी कौंसलर, रामपाल शर्मा जी मनसंघ नगोदर, इन्होंने वालों शोक संदेश आए हैं। हुण जी है रस्म पगड़ी होएगी तो परिवार वालों हाथ जोड़ के बेनती है कि आए हुए सारे ही सज्जना ने जोड़े इस परिवार के नाल अपना दुख मनाउण आए हैं। साडे माता लाल देवी जी इन्हां बच्चों की अगवाई आने वाले समय के करते रहेंगे। उन्होंने उन्होंने आशीर्वाद हमेशा बच्चों के नाल बनिया रहेगा। तो एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मंदिर श्री बाबा भूतनाथ कमेटी नूर महल वालों भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कमेटी के इस ढींगड़ा परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आप सब जी का इत्थे पहुँचने से एक बार फिर मंदिर श्री बाबा भूतनाथ कमेटी तो ढींगड़ा परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, होर सुनावां किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे